Hello everyone, this is Rana. Welcome to LPT. I'm going to help you revise for general awareness section of SET 2026, which is just around the corner. So it's our final revision series that we have come up with, and in this series we are going to cover every section of the SET examination, wherein you have 60 questions to be solved in 60 minutes, and the marks are also 60. So 60 is a number that you need to keep in mind. So 2nd of May, their first slot, the first examination, the first test is going to be on 2nd of May. That is right before your IP MAT Indore examination. I hope those who are going to appear on 2nd of May, they've already downloaded their admit cards and they've seen that what is the venue, what is the center that they have to reach. Be sure that you reach before time, according to the time that's given up in the admit card. So 9 o'clock your paper is going to start. Be sure that you reach the center at least by 8:30, between 8 and 8:30. ठीक है, तो ये सारी चीज तो ध्यान में रख ही लेना. तो as I said that this is the final revision series on LPT platform for you to help prepare for SET 2026. तो उसके अंदर ये पहला सेशन आपका जनरल अवेयरनेस का है. तो as I said, my name is Rana and I'll be helping you revise for general awareness. So 16 odd questions that you have to answer in your SET 2026. Now, the beauty of general knowledge or general awareness is that either you know the answer and you don't, or you don't know the answer. So the beauty is that you don't have to spend much time. So that is what you need to keep in mind, because as I said, 60 questions, 60 minutes. So the least amount of time that you should be spending among all these 4 sections is in the general awareness section. So just quickly browse through the questions and tick mark the answers that you already know. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो जनरल अवेयरनेस में एज आई सेड कि either you know the answer or you don't know the answer. So what we are going to do in this session is that we will cover plethora of topics, because general awareness in itself is Pandora's box. तो जितना कर लो यार उतना कम है. One technique that always works in general awareness is elimination technique. तो elimination technique भी तब हो पाएगी जब हमको बाकी options के बारे में कुछ पता होगा. तो एकदम blank ना जाएं हम वहाँ पर. अभी तक जितना हमने study करा है उसको थोड़ा सा हम revise कर लेते हैं. So in this particular session, we'll do a number of questions, but what's more important is that with every question you will have lots of information for you to write down, for you to revise. तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा. हर एक क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ उसके साथ और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टॉपिक अगर हम बात करेंगे तो दैट ऑल्सो विल बी देयर. सो कीप जॉटिंग डाउन. So you should quickly pick up a notepad or a register and a pen or a pencil with you and start with me to revise for general awareness for SET 2026. So first we are going to cover people. अच्छा, इसके अंदर हमको पता ही है that the people are important, the dates are important, Indian polity is important, geography is important, Indian history is important, brands and products are there which becomes important. So as I said, it's a Pandora's box. But based on whatever has been asked in the past years, we have curated this particular series wherein we'll be helping you revise the most important things. ठीक है, और end तक रुकना, वहाँ पर I'll tell you that how you can give टेस्ट एवरी डे. जो 16 क्वेश्चन का छोटा मिनी मॉक टेस्ट जो है वो कहाँ पर मिलेगा, आप कहाँ पर जो है उसको अपियर कर सकते हो और अपने रिविजन को एकदम फुल प्रूफ कर सकते हो. तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स हियर ऑन द बोर्ड इज दैट हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. नाउ अगेन दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो आंसर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं दे हैव बीन आस्क्ड in the previous years in SET examination. So यहाँ पर हमको पता है कि Iron Man of India is Sardar Vallabhbhai Patel. Now what additionally you need to remember is that this person, Sardar Vallabhbhai Patel, he is known for unifying India into one. Okay, princely state से बात करना, फिर उनको state में combine करना. So he is considered to be somebody who has unified India. तो अगर आपको पता नहीं है तो याद रख लेना that he was also the first home minister in the Indian cabinet. जो इंडिया की पहली कैबिनेट बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. सो जवाहरलाल नेहरू के लिए भी आपको याद रखना है that he was the first prime minister of India, and I'm sure you know that he was the current prime minister. ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर जो करंट लोग हैं जो कि डिफरेंट पोस्ट पर हैं वो अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. तो जो वेरियस पोस्ट होल्डर्स हैं उनके भी नाम आपको याद होना चाहिए. कमिंग बैक टू इट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, he was the first home minister of India as well as he was the first deputy prime minister. So these are the two things that you should remember for him.
along with the fact that he is known as the Iron Man of India. अब मैंने आपको बताया कि यूनिफाई करने में, इंडिया को यूनिफाई करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड अ डे एज नेशनल यूनिटी डे. So that National Unity Day is the birth anniversary of the first Deputy Prime Minister of India, that is Sardar Vallabhbhai Patel, and it falls on October 31st. ठीक है, तो दो क्वेश्चंस है, दो आंसर्स हैं, बट इस क्वेश्चन से और क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं जिसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है. ठीक है, तो आई एम नॉट डूइंग अ क्विक रिविजन ओवर योर. what you should do is that you should go back, and if you have not written down your notes, not jot down the notes, do it. ठीक है, तो थोड़ा सा बैक जाके वापस से आ जाएंगे अपन फॉरवर्ड. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी डे, एंड सिमिलरली ये जो यूनिटी डे है, यूनिटी के नाम से आपको एक और चीज याद आ जानी चाहिए, दैट इज दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किससे रिलेट करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेट करता है. ये आपको क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू. The world's tallest statue is in India, in the state of Gujarat, and it goes for who? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हो गया आपका. अब मैंने आपको ये बताया था कि एलिमिनेट कर सकते हो आप ऑप्शंस. दैट्स वन टेक्निक दैट इज देयर रेलेवेंट फॉर द जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस. तो या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शंस देखेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. तो अगर हमको नहीं पता था कि यूनिटी डे 31 अक्टूबर को आता है, बट वेरी रिसेंटली इफ यू आर अवेयर एंड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग, यू मस्ट हैव नोन दैट अप्रैल 23 जो है अभी रिसेंटली गया है, तो ये बुक्स एंड कॉपीराइट्स डे था. हमने इस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी भी थी एलपीटी के प्लेटफॉर्म पे. तो बुक्स एंड कॉपीराइट डे था. अप्रैल 22 जो है ये गया है अभी रिसेंट में ही, वो अर्थ डे था. और जून 21 तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मोदी जी बहुत ही नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जून 21 जो है इंडिया के एफर्ट्स की वजह से ही जो है हम कहते हैं दैट वाज डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड योगा डे. तो अगर आपको ये पता हो तो आप ये तीन ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके एंड यू कैन कम डाउन टू द करेक्ट आंसर. फाइन. यहाँ पर इस पूरे स्लाइड के ऊपर हमने जिनकी बात नहीं करी है वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो क्विकली हम इनकी भी बात कर लेते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है दैट ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड अगेन आई होप यू नो दैट ही इज द करंट प्रेसिडेंट. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनकी जो एनिवर्सरी है जो अभी अप्रैल में ही गई है 14 अप्रैल, तो उसके ऊपर अभी भी डेलिब्रेशन चल रहा है कि वो ऑफिशियली हॉलीडे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. बाय द वे हॉलीडे थी, स्कूल्स में तो थी. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, इनके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है. आई एम श्योर एक आपको पता होगी दैट ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और जो आपको पता होगी वो ये है कि ही इज नोन और ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज आपको पता थी, उसके साथ आप ऐड कर ले रहे हो कि ही वाज आल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे से दो क्वेश्चन के बजाय हमने मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं. तो प्लीज सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए चलना. अब क्योंकि हमने आयरन मैन ऑफ इंडिया की बात करी है, देयर आर सर्टेन मोर पीपल दैट शुड बी नोन टू यू, और उनके नाम यहाँ पर लिस्ट डाउन करे हुए हैं. आई एम श्योर कुछ को ये तो पता ही होगा कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं. अमूल को बिल्ड करने में, अमूल दैट इज इन रीसेंट कंट्रोवर्सी. तो कई बार ऐसा होता है यार कि जो करंट में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं. फाइन. तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन. अमूल को बिल्ड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है. फिर हमारे पास बर्ड मैन ऑफ इंडिया है. तो देयर इज अ बर्ड सैंक्चुरी बाय हिज नेम, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी, दैट्स देयर इन गोवा, इन द स्टेट ऑफ गोवा. तो डॉक्टर सलीम अली आप याद रखेंगे as the person who is regarded as the bird man of India for the thorough research on birds that he had done. Then we also have a waterman of India. अभी आपने इंग्लिश मूवीज देखी हो तो उससे रिलेटेड वाटरमैन मत समझिएगा. ही इज समबडी हु हैज वर्कड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर. ठीक है. ऐसा कहा भी जाता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो शायद वाटर के ऊपर ही होगी, बट वी डोंट नो विद द करंट वॉर दैट्स गोइंग ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट देन वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, फॉर every living creature that's there on earth. So waterman of India कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह. तो स्टॉकहोम वाटर इंस्टीट्यूट जो है उसने भी इनको उपाधियों से सम्मानित करा हुआ है. तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, याद रखेंगे. अब पैडमैन ऑफ इंडिया भी है. प्लीज यहाँ पर ये मत कर देना कि अक्षय कुमार उसमें ऑप्शन में हो तो अक्षय कुमार टिक कर दो. भाई अक्षय कुमार ने मूवी बनाई थी पैडमैन, जो कि बेस्ड थी रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर जिनका नाम है अरुणाचलम मुरुगनाथम. तो
तो रियल पैडमैन ऑफ इंडिया इज अरुणाचलम मुरुगनाथम। आई नो छोटा सा नाम है बट जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, टाइगर के कंजर्वेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई है एंड वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे प्रोजेक्ट टाइगर के, उन्होंने जितने एफर्ट्स डाले फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, तो कैलाश संकला जो है ही इज कंसिडर्ड टू बी द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बट अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो कुछ वक्त पहले देयर वाज दिस वन पर्सन हु डाइड, ही आल्सो वाज कंसिडर्ड टू बी द टाइगर मैन। बट प्लीज आप उसको जो है कंफ्यूज मत करना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कैलाश संकला जी ही हैं, ठीक है, फाइन। तो उनका नाम है वाल्मीकि थापर, अगर आपको वो नाम है वाल्मीकि थापर, तो वो टाइगर मैन कंसिडर किए जाते थे, बट टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है उनका नाम आपको कैलाश जी के नाम से ही याद रखना है। फिर हमारे पास मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी है और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी है। आई एम श्योर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको पता होगा, क्योंकि ये पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहे जाते थे, वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है इज कंसिडर्ड टू बी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि इन्होंने दोनों ही जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका ये पार्ट रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये भी क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, एंड आई एम श्योर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो दे आर अवेयर कि इसरो क्या है ना। तो एक बार के लिए बस हम रिपीट कर लेते हैं दैट इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द नोडल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर डीआरडीओ जो है ये हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। तो इन दोनों के फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी हमारे पास, शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू हेड अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मिसाइल। तो अग्नि 4 मिसाइल जो है उसकी प्रोजेक्ट हेड बनी थी ये, और वहीं से ही शी स्टिल विद डीआरडीओ, सो वहीं से ही इनको ये टाइटल मिला, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है। तो मिसाइल मैन भी है हमारे पास, मिसाइल वुमेन भी है। तो इस स्लाइड पे से भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे तो यू विल बी एबल टू आंसर। सो ये आप ध्यान में रख लें। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दीज नेम्स, बट इट्स बेटर टू राइट इट डाउन रादर देन टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग की हमने बात करी। रिमेंबर फर्स्ट स्लाइड पे हमने अक्टूबर 31 की बात करी थी और 3 और डेट्स की बात करी थी, तो डेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो डेज के क्वेश्चन मैच द कॉलम के फॉर्म में भी एसईटी में आए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ देखोगे कि 2-2 का पेयर है, 2-2 का चंक बना के रखा हुआ है यहाँ मैंने आपकी इजीली रिमेम्बरेंस के लिए। तो अब वो चंक क्यों बनाया है, बिकॉज देयर इज अ डे that is related to a particular thing that's observed over here in India on a different date and observed wholly internationally in the world through United Nations or any other important organization. By this way, important organization हम next वाले सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो वो डेज मैंने यहाँ पर क्लब करके आपके लिए लिख दिया। अच्छा, इससे और बहुत सारे हैं, बट देन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये वो कुछ वो हैं जो इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट, ठीक है। तो अगर अपन यूथ डे की बात करते हैं तो यूथ डे यहाँ पर नेशनल भी है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपको पता होगा, तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी, उसको हम लोग नेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और यूएन डेजिग्नेटेड जो इंटरनेशनल यूथ डे है दिस इज ऑन 12 अगस्त। तो डेट सेम है यहाँ पर आपके लिए, बस मंथ जो है वो डिफ्रेंशिएटर है। फिर यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करें जो कि अभी हम कर ही रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन डे भी इंटरनेशनल डे भी है और नेशनल डे भी है, तो वो प्लीज याद रख लेना। ये नेशनल डे जो है जरा आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर आपको आता है ये चीज, दैट हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ना, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 11 नवंबर को जो है हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इफ यू नो दैट हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, प्लीज कमेंट, है ना, कमेंट के अंदर लिखो एंड वी विल टेल यू वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। गूगल मत करना, आता हो तो ही लिखना। फिर हम यहाँ पर कैंसर की बात करें तो it is one of the menace that's there in the health world. Many people are dying of this, so there's a lot of awareness that has to be created क्योंकि early detection होता है तो it is good for the patient. तो यहाँ पर 4 फरवरी और 7 नवंबर है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है और 7 नवंबर को हम इंडिया के अंदर कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व करते हैं। फिर साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, तो साइंस के लिए भी हमारे पास नेशनल साइंस डे है और वर्ल्ड साइंस डे है। तो वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर है, ये देख लो 7th और 10th है, 7 में 3 मिलाना है
तो थोड़े से ऐसे प्लस माइनस करके भी आप मेमोराइज कर सकते हो डेज को। और 28 फरवरी जो है वो नेशनल साइंस डे है। तो यार ये जो नेशनल साइंस डे है ना, दिस ऑल्सो रिलेट्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट फिजिसिस्ट फ्रॉम इंडिया टू रिसीव अ नोबेल प्राइज। अगेन अगर आंसर आता हो तो उसको कमेंट में लिखो, नहीं तो अवार्ड्स जो हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो विल बी कवरिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, विल आल्सो बी कवरिंग द अवार्ड्स। तो जो इंडिया की तरफ से फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीते थे उनके लिए हम ये 28 फरवरी जो है उसको डेजिग्नेट करा है साइंस डे। बाय द वे वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी नहीं है। 1930 को 1930 में सो 28 फरवरी 1930 को इन्होंने रमन इफेक्ट जो है वो अनाउंस करा था। तो अब मैंने तो आपको आंसर भी दे दिया है, अगर आप कर पा रहे हो, याद आ जाए, रिकॉल हो जाए तो कमेंट्स में लिखना, ठीक है। तो ये वाले डेज हो गए। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स आर आल्सो रिलेटेड टू डेज ओनली। ये वाले स्लाइड पे वो नेशनल डेज हैं कुछ इंपॉर्टेंट से जो कि आपको याद करना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने पास जॉट डाउन करके रख सकते हो कि यार ये वाले डेज तो मुझे याद करने ही करने हैं। रिमेंबर ही करने क्यों है, ताकि अगर कुछ एलिमिनेट करना हो तो हम एलिमिनेट कर सके। नेक्स्ट वाली स्लाइड जो है इसमें कुछ इंटरनेशनल डेज लिखे हुए हैं जो कि हमको याद होना चाहिए, जो कि हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, मेमोरी पे होना चाहिए। वाटर की हमने बात करी थी कि इट्स एन एसेंशियल थिंग। जब हम डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बात कर रहे थे एज अ वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो वाटर डे भी होता है 22 मार्च इन ऑर्डर टू हेल्प अस अवेयर दैट यार वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी प्रिजर्वेशन करते होंगे, है ना, वाटर का। तो ऐसे फेंका मत करिए पानी को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वाला जो है डेज वाला स्लाइड, ये भी याद रखेंगे, ये हमारे कुछ इंटरनेशनल डेज है। तो इंपॉर्टेंट पीपल हो गए, डेज हो गए। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं तो हिस्ट्री इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट हैज बीन टच्ड बाय एसईटी रेगुलरली। और एसईटी के अंदर हिस्ट्री में भी वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते रहे हैं, ब्रिटिश एरा से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर हमारे यहाँ के जो 2-4 मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं। तो अभी अपन वही कवर कर लेते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे द फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स हियर ऑन द बोर्ड इज द बैटल ऑफ प्लासी। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर इज द क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये आपको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री याद हो तो आपको पता होगा कि बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द इंडियन सॉइल। तो मान लो अगर यही क्वेश्चन आ गया दैट विच वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बाय द ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन सॉइल, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुआ था, 1757 के अंदर इट वाज फॉट। नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। इनफैक्ट नेक्स्ट स्लाइड जब मैं आपके पास करूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेंगे या जॉट डाउन करेंगे, तो वहां पे आप लिस्टेड डाउन ऑल दी इंपॉर्टेंट बैटल्स दैट यू शुड नो। तो उसका ईयर है, बैटल का नाम है और कौन कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी वो है। तो इससे भी आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स करने में हेल्प मिलेगी, तो अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। तो अभी हम पहले यहाँ पर जो बचे हुए 3 ईयर्स हैं उनकी भी बात कर ले, क्योंकि ये चारों बैटल्स जो हैं, चारों ईयर्स की जो बैटल्स है, ऐसा कहा जाता है दे हेल्प्ड द ब्रिटिश टू सीमेंट देयर पावर ओवर हियर इन इंडिया, ठीक है। तो पहली तो हो गई ये बैटल ऑफ प्लासी अपनी 1757 के अंदर। फिर उसके बाद 1760 में उन्होंने फ्रेंच के अगेंस्ट में लड़ाई करी थी, जिसको वो बैटल ऑफ वैंडी वॉश कहा जाता है। तो बैटल ऑफ वेंडी वॉश वाज फॉट इन व्हिच ईयर, वाज फॉट इन द ईयर 1760। नेक्स्ट स्लाइड में भी है डिटेल। 1761 जो है, तो पानीपत आपने नाम सुना होगा। तो देयर आर 3 बैटल्स ऑफ पानीपत दैट वर फॉट एंड ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट, जिसमें से जो ब्रिटिशर्स के काम आई थी दैट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और 1764 में दिस वाज द बैटल ऑफ बक्सर। इसमें उन्होंने कंबाइंड मुस्लिम फोर्सेस को जो है डिफीट करा था और ब्रिटिशर्स ने जो फाइनली है अपना साम्राज्य और फैला लिया था। तो ये 4 बैटल्स इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे ही, क्योंकि वो बैटल्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश को हेल्प करी थी टू सीमेंट देयर पावर ओवर हियर इन इंडिया। तो जब ब्रिटिश आए तो उनके साथ गवर्नेंस भी आई, है ना। तो जब गवर्नेंस आई तो उन्होंने जो टाइटल रखा दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद है पहली बैटल उन्होंने अगेंस्ट नवाब ऑफ बंगाल ही फॉट करी थी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से टाइटल जो है वो शुरू हुए। लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से जो पार है दैट वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, तो फिर उसको उन्होंने वाइस रॉय बोल दिया था। तो वही नाम अभी अपन यहाँ पर जो है चारों नाम, इन चारों नाम को हमको याद रखना है। किस चीज के लिए याद रखना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू।
तो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इनको आप याद रख लोगे एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन वहीं अगर आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद करना पड़ेगा तो वो कौन थे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बचे हुए दो नाम जो है अपने पास, विस्काउंट कैनिंग। याद है मैंने आपको बताया था कि पार जब ट्रांसफर हुआ था ब्रिटिश क्राउन को आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, अगेन और इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू कि रिवोल्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटिनी जो था कब हुआ था, तो 1857। तो उसके बाद जो है तो इट वाज ट्रांसफर्ड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इट वाज ट्रांसफर्ड टू द क्राउन। तो उस टाइम पर उन्होंने वाइस रॉय वाइस रॉय का टाइटल जो है वो ले लिया था। तो इंडिया के पहले वाइस रॉय कौन हो गए? विस्काउंट कैनिंग, ठीक है। अब एक बचे हुए हैं लुइस माउंटबेटन। आई एम श्योर इनका नाम तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, है ना। माउंटबेटन एज अ फैमिली ऑल टुगेदर हैज बीन पॉपुलर। इनफैक्ट अगर आपने पंडित नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है, अगर उसके बारे में सुना हो या पढ़ा हो, टुवर्ड्स फ्रीडम, तो उसमें भी इनका मेंशन है। तो लुइस माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन प्लान दैट वाज द लास्ट प्लान दैट वाज क्रिएटेड फॉर आवर इंडिपेंडेंस। तो लुइस माउंटबेटन जो है ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये लास्ट वाइस रॉय भी हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी कहे जाएंगे, है ना, क्योंकि एकदम से तो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ था। तो जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो जब तक वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ था तो हमने गवर्नर जनरल का ही टाइटल ले लिया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहले कौन हो जाएंगे? लुइस माउंटबेटन। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर हम बात करते हैं तो द आंसर इज गोइंग टू बी वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी लुइस माउंटबेटन या लुई माउंटबेटन। और विस्काउंट कैनिंग जो है ये इकलौते हैं जिनके साथ आप कौन सा टाइटल ऐड करोगे? वाइस रॉय का। ही वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। जब मैं इंडिया कह रही हूँ तो वो हमारा ब्रिटिश इंडिया ही है, फाइन, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हमने सिर्फ लुइस माउंटबेटन की बात करी, फाइन। तो हिस्ट्री में मैंने जैसे कहा कि ब्रिटिश से रिलेटेड प्लस जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट में से एक मैंने अभी आपको बता दिया है, सिपाही म्यूटिनी वाला, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है सारी बैटल्स जो कि आपको याद होनी चाहिए वो लिस्ट डाउन करी हुई है। इससे ज्यादा और भी हैं बट ये तो वो हैं जो आपको याद होना ही चाहिए। तो मैं व्यू से थोड़ा सा हट जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन रीड द नेम्स ऑफ द बैटल्स। यहाँ पर आपके पास बैटल का नाम है, उसका ईयर है, प्लस जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी उनका भी नाम है, ठीक है। सो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो है हम इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं, बट पॉलिटी की बात करने से पहले क्या मैं आपको वो थोड़े से अपने नेशनल मूवमेंट्स जो है वो भी अपन लिख ही लेते हैं, है ना। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो मैंने आपको बताया। फिर गांधी जी से रिलेटेड चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको पता होगा कि लास्ट हमारा जो मूवमेंट था वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब था? 1942। तो प्लीज याद रख लेना कि 1942 के अंदर आपको क्या याद रखना है? क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला। फिर 1930 के अंदर दांडी मार्च हुई थी, वो याद रख लेना यार, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको कहते हैं। तो 1930 का सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च याद रखेंगे। 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये मैं सही से लिख देती हूँ। 1920 का, ये 30 है, तो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये भी याद रख लीजिएगा। तो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का सॉल्ट मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च याद रखेंगे, और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो हिस्ट्री से अपन आगे बढ़ते हैं और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रेगुलरली अपीयर होते रहे हैं एसईटी के अंदर, ठीक है। तो आप ये देख रहे होगे, अभी तक जो सुन रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि हम करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक भी साइड बाय साइड करते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों का मिक्सचर ही हमारे पास जो है एग्जामिनेशन में आता है। तो अब क्वेश्चन कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे हमारा पूरा इंडियन पॉलिटी बेस्ड है वो अडॉप्ट कब हुआ था? अब इसमें आंसर 26 जनवरी 1950 मार्क मत कर देना,
क्यों मत कर देना, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, दैट डेट वाज 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम लोग हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अनदर डे गेटिंग एडेड टू योर किटी, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब 26 जनवरी इस दिन तो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोज हुआ था या इम्प्लीमेंट हुआ था। The Constitution was implemented on 26 January 1950. That is the day when we celebrate our Republic Day. और ये जो हमारा adoption वाला है 26 November, that is the day on which we are celebrating our Constitution Day, क्योंकि Constituent Assembly ने adopt करा था Constitution। ठीक है, और जब ये Constitution बना था यार, अच्छा वैसे ये तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देते 15 अगस्त, क्योंकि इस दिन तो हमको आज़ादी मिली थी, है ना, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और 2 अक्टूबर 1949 अगर यार याद भी ना रखो तो 2 अक्टूबर तो आपको पता है कि गांधी जयंती होती है, बचपन से ही अपन को छुट्टी मिलती है ये। तो एलिमिनेट करके जो कंफ्यूजन होना था वो 26 जनवरी या 26 नवंबर में ही होना था। तो अब आई एम श्योर कि क्लियर है कि 26 नवंबर मार्क करना है अगर वो अडॉप्टेड पूछते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर ये वाला इंफॉर्मेशन और याद रख लेना यार, जो एडिशनली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो उस वक्त जब 1949 की बात कर रहे हैं, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और कितने स्केड्यूल्स थे? 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, ये नंबर याद रखना। अब आप बोलोगे कि आपने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, तो यार ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये 106 टाइम्स अमेंड हुआ है। जो संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में 106 बार, और इन संशोधनों के बाद ही जो है चेंजेस जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करा। तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं ना, जो इनिशियली 22 थे वो अब कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछते हैं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा दैट दे आर आस्किंग कि जब बना था उस वक्त क्या था, या वो भी करंट वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स जो है वो अब कहीं जाके 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, और 8 शेड्यूल्स जो थे वो इंक्रीज होकर कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। तो दोनों ही फिगर्स जो हैं, पास्ट वाला मतलब देन एंड नाउ, तो देन कितना था और नाउ कितना है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास पूरा लेआउट था, तो उस लेआउट के अंदर पार्लियामेंट का भी जिक्र है ना। और हमारे यहाँ कौन सा पार्लियामेंट का फॉर्म है? बाइकेमिरल। ये अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे या नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मैंने कुछ बोरोड फीचर्स जो हैं वो मेंशन करे हुए हैं, जिसके ऊपर अगेन क्वेश्चन आया है और मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन आया है। क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठी थी तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको गो थ्रू करा था। तो कई कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ फीचर्स जो है वो बोरो कर लिया और उनके ऊपर क्वेश्चन जो है अमूमन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जो है वो बाइकेमिरल है। बाइकेमिरल का मतलब क्या होता है? हैविंग 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और ये हमको बचपन से पता होना चाहिए। 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो लोकसभा है, राज्यसभा है, और अगर अपन स्टेट लेवल पे आ जाते हैं तो वहाँ पे भी बाइकेमिरल है, कई जगह यूनिकेमिरल भी है, बट बाइकेमिरल का हमारे पास प्रोविजन है। तो बाइकेमिरल में स्टेट लेवल पे क्या हो जाता है? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अब एक चीज जो मिस हो जाती है वो ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक बार आया था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है। तो यार उसमें प्लीज कंफ्यूज होने की या कुछ भी ऐसा कि हमें नहीं आता है की जरूरत ही नहीं, क्योंकि संसद भवन है ना अपना। तो संसद जो है दैट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ होम? तो लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं, लोकसभा एंड राज्यसभा भी नहीं। यही याद रखना है कि जब हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं तो उसके अंदर हम प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की तो उस वक्त प्रेसिडेंट ही प्रिसाइड करते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है तो लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ आपको प्रेसिडेंट भी इंक्लूड करने हैं। ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग, आई एम होपिंग दैट आपको करंट प्रेसिडेंट का नाम पता होगा, और ये पता होगा कि अभी तक कितने फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिमिलर इज द केस फॉर फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 डेट्स मैंने आपको बताई, 26 नवंबर और 26 जनवरी। उसके अलावा ये एक और डेट प्लीज याद रख लेना। This date is 9th of December 1946 when the first meeting of the Constituent Assembly was held. ठीक है, 9th December 1946 first meeting of the Constituent Assembly. Fine.
और ये जो पर्सन है जिनका नाम मैंने आपको अपनी सबसे पहली वाली स्लाइड पे दिखाया था जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मैंने मेंशन करा था दैट ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट अपार्ट फ्रॉम डूइंग दैट, और अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट ही वाज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, वो जो एक दिन वाले प्रेसिडेंट थे उनका नाम हम नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इसको एडिशनली अभी नहीं करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल. तो यहाँ वाले डायग्राम में से आप ये दो चीजें याद कर रहे हो. अब इन दो चीजों के अलावा एक और चीज आपको याद करनी है, वो ये करनी है, इसके ऊपर यार 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट व्हाट वाज द ड्यूरेशन टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ही सिंपल सा है, 2 years 11 months 18 days. 2 years 11 month 18 days. तो ये कब से कब तक का ड्यूरेशन है? दिसंबर 9 से लेकर नवंबर 26, जो अपन पहले ही कर चुके हैं कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ था, है ना. तो हमारा जो लीगल फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी है, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. 26 नवंबर 1949 ये वो वाला डे है जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब फाइनलाइज हो गया था. और दिसंबर 9 1946 वो वाली डेट है जिस डेट पे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी मीटिंग हेल्ड करी थी. ठीक है, तो यहाँ से ये आप याद कर लोगे. फिर उसके बाद जो जैसा मैंने आपको बोला था दैट देयर आर सर्टेन features, है ना, that we have borrowed in the Indian Constitution from various other constitutions. तो इसमें से अभी मैंने आपको इसका मतलब समझाया था, बाइकैमेरल लेजिस्लेचर. तो ये हमने कहाँ से लिया है? उन्हीं लोगों से जिन लोगों ने हमें बंदी बना के रखा था और फिर बाद में जिनसे हमने इंडिपेंडेंस ली, दैट इज द ब्रिटिश. तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बाइकैमेरल लेजिस्लेचर का जो फीचर है वो बोरो करा है. इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजन. तो ये इमरजेंसी प्रोविजन वी हैव बोरोड देम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. तो 3 तरह की इमरजेंसीज हैं जो इंडिया में लागू हो सकती हैं. तो 2 तरह की तो हुई हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ही रफली यूज़ किया गया है, तो जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी. तो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल, है ना. फिर उसके बाद जो है नेशनल इमरजेंसी. आई एम श्योर इसके बारे में भी आपको पता होगा. नेशनल इमरजेंसी 3 बार इम्पोज हुई है बट एक ही कंट्रोवर्शियल रही है. 1975 से लेके 1977 के बीच में 21 मंथ लॉन्ग पीरियड था जो हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी इम्पोज थी. तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बिल्कुल कर्व हो जाते हैं. फिर उसके बाद एक और तरह की इमरजेंसी है जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इम्पोज की जा सकती है इंडिया में जब जो है सरकार के पास पैसे खत्म हो जाएं, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया. तो जो यूज करे हुए हैं वो स्टेट और नेशनल इमरजेंसी हैं. तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं? वो इमरजेंसी प्रोविजंस हमने फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जो है वो लिए हुए हैं. तो मैं वापस से आपके व्यू में से हट जाती हूँ ताकि आप ये स्क्रीनशॉट ले सकें और ये जो प्रोविजंस है वो याद कर सके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर उन्होंने जो है मैच द कॉलम के तौर पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं. ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी को ही कंटिन्यू करके थोड़ी और चीज़ें हैं क्योंकि पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस कई जो है वो पूछे जा चुके हैं. तो आपको ये देखते से ही समझ में आ गया होगा दैट दिस इज द प्रीएम्बल. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होना चाहिए. पिछली वाली स्लाइड अगर आपने पढ़ी हो तो ये वाला आइडिया जो है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था. तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो प्रीएम्बल है वो इंडिया को कौन से वर्ड्स यूज करके डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो आपको इसमें से ये याद रखना है कि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ था उस वक्त हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इंडिया को डिफाइन करा था एज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो 1949 में इंडिया कैसे डिफाइन था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, सॉवरेन मतलब फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड रूल. अब ये जो 2 वर्ड्स हैं जिसके ऊपर एक बार ये क्वेश्चन आया है कि जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर ये कब ऐड करे गए थे? आपको याद है अभी पिछली 2 स्लाइड्स जो हम कर रहे थे उसमें से मैंने आपको अमेंडमेंट्स बताए थे कि 106 अमेंडमेंट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं. तो ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड है दिस वाज एडेड इन द ईयर 1977 व्हेन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड. ठीक है, 42
सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वापस से लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगा वो क्लियर नहीं है। तो 1977 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स वर एडेड। अब ये जो है अभी तक का सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट माना जाता है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें से प्लीज ये याद रख लो कि हम लोग 1949 में क्या डिफाइन थे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट अगर अभी की बात करें तो वी आर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट सेक्युलर ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इनपुट करे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। तो हिस्ट्री हो गया यार, इंपॉर्टेंट पीपल हो गए, डेट्स हो गई हैं, हमारी इंडियन पॉलिटी हो गई है, ज्योग्राफी इज अनदर एस्पेक्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब बिफोर आई बिगिन विद दिस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैपिटल्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स एज वेल एज द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर पे भी, उनके कैपिटल्स जो हैं उसके ऊपर पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान में रख लेना। जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल पूछे जाते हैं, कंट्रीज की करेंसी के ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्राज़ील की कैपिटल पूछी गई है, तो ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो नहीं है, वो ब्राज़ीलिया है, तो वो हमको पता होना चाहिए। इंडिया में इन टोटल आपको पता होगा कि कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, है ना। तो पॉलिटिकली अगर इंडिया को हम देखें तो 8 स्टेट्स और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास। तो ये जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इनके कैपिटल्स आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 50 ऑड कंट्रीज के कैपिटल और करेंसी जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर पता होगा तो फिर आप एलिमिनेशन के थ्रू जो है फिर भी आप आंसर पे अराइव कर सकते हो, बट एलिमिनेशन लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ पता होना जरूरी है। तो हम वापस आते हैं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया पूछा है, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया पूछा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर गंगा होगा, है ना, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है वो मोस्टली इट इज आउटसाइड इंडिया। बट यहाँ पर क्वेश्चन था रिवर इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो गैंजेस या फिर द गंगा रिवर, दैट्स द लॉन्गेस्ट रिवर दैट वी हैव इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देख लो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पर आपके पास ये मेंशन्ड है कि हमारे जितने भी रिवर्स हैं वो सब किस तरफ जा रहे हैं, वो सब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब कहाँ पर जाकर एम्प्टी होते हैं, बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन प्लीज याद सुन लो, आराम से सुन लो, अभी नेक्स्ट 2-3 मिनट्स और ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू कम जिसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये जो अपने रिवर्स है मेजरली आप देखोगे तो वो कहाँ पर जा रहे हैं, दे आर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज द होम टू वन ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरीज दैट वी हैव इन इंडिया, एंड आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि उस तरफ पर बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी दैट्स देयर। ठीक है, क्वेश्चन जो आया है या आ सकता है वो नर्मदा और तापी पर है, क्योंकि यही तो एक ऐसे रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो दो मेजर रिवर्स जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जो एम्प्टी होते हैं किसमें आके, अरेबियन सी में आके। अरेबियन सी क्यों आपको याद रखनी है, बिकॉज इट इज द हाउस टू another union territory of India, and that is which union territory, लक्षद्वीप। तो उधर हमारे पास अंडमान निकोबार है, इधर हमारे पास लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किस में है, अरेबियन सी में है, और बे ऑफ बंगाल में अगर हम बात करते हैं तो वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये याद रखना का कि नर्मदा और ताप्ती जो है ये दो मेजर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो हम जस्ट रिपीटिंग इट, इंडिया के स्टेट्स जो कि 28 हैं उनके कैपिटल्स आपको पता होना चाहिए, इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनके कैपिटल्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार कहाँ पर है, कौन से दो मेजर रिवर्स हैं जो कि फ्लो करते हैं थ्रू द वेस्ट। और इसी इमेज से आपको वो जो पंजाब नाम है ना, 5 रिवर्स, जिसकी वजह से वो नाम पंजाब आया है, तो वो 5 रिवर्स के नाम भी आपको मिल रहे हैं, इंडस है, झेलम है, रवि है, सतलज है और चेनाब है। तो ये पांचों जो है मिलकर पंजाब को नाम देते हैं, है ना, द 5 रिवर्स दैट आर देयर। तो ये याद रख लेना, ये वाली सॉरी ये वाली चीज जो है वो हो गई है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, प्रीवियस अगर अपन देखें तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो स्टेट है ये इंडिया की कोस्टल लाइन है, बंदरगाहें हैं जहाँ पर, और उसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है हमारे दोनों
जो आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो अब ये कोस्टल लेंथ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसको रिकैलकुलेट करा गया है यार। तो 2024-25 में ही ये अपडेशन हुआ है बाय द शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखेंगे तो अभी भी 7,516.6 किलोमीटर्स ही लिखा हुआ है, वहां पर उन्होंने अपडेट नहीं करा है। बट 7,516.6 अब आंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिकैलकुलेशन के हिसाब से जो इंडिया की कोस्टल लेंथ है या कोस्ट लाइन है वो कितनी हो गई है, 11,000 के बियॉन्ड चली गई है। तो 11098.81 किलोमीटर्स इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन अकॉर्डिंग टू द न्यू कैलकुलेशंस दैट हैव बीन डन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रखेंगे। अगर इंडिया की कोस्टल लेंथ आपसे पूछी गई है और उसके अंदर ऑप्शन में 7516.6 जो है वो है, तो वो मार्क कर देना। अगर 11098 लिखा हुआ है तो वो मार्क कर देना। बैड लक खराब है कि दोनों ही उन्होंने डाल दी, तो वहां पर ये देखना कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स न्यू, अगर ये डाल देंगे 11,000 वाला नंबर फिगर अगर डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर यही हो जाएगा। प्लीज वहां बैठ के कंफ्यूज मत होना कि मैं दोनों में से क्या टिक करूं, ठीक है। बट क्वेश्चन पढ़ लेना उसके हिसाब से आंसर करना। तो 9 स्टेट्स हैं इस कोस्टल लेंथ के ऊपर और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसकी सारी मिलाकर ये अपनी लेंथ है। तो लेंथ का जो नंबर है प्लीज वो याद रख लेना। अब आप ये दो क्वेश्चंस के आंसर देखो, देन लेट मी हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। So yes, we have come back to पॉलिटी ओनली, मान लो ज्योग्राफी और पॉलिटी उसका मिक्सचर ही है ये। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया पॉलिटी जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पर उन्होंने एरिया पूछा है तो इसलिए ज्योग्राफी में आ जाता है, ठीक है। तो एरिया के हिसाब से हमारा जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ लेंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर उत्तर प्रदेश रहेगा। रिमेंबर बाइकेमिरल, उसमें मैंने बताया था कि स्टेट में भी बाइकेमिरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है ना वो सबसे बड़ी विधानसभा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यूपी के जो स्टेट इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो याद रखिएगा, बाय एरिया बोलते हैं हम इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट दैट इज राजस्थान, बाय पॉपुलेशन बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश। कभी ये पूछ लें आपसे कि कौन से स्टेट की स्टेट असेंबली सबसे बड़ी है, तो उसका आंसर भी आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। ज्योग्राफी पे वापस आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न की थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो इंडिया से सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया से कौन सा ट्रॉपिक पास करता है। तो इंडिया से कौन सा ट्रॉपिक पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जब तक मैं ये बता रही हूँ तो कुछ जो हमारे इंटेलिजेंट लोग होंगे उन्होंने यहाँ पर नाम पढ़ के काउंट कर लिया होगा दैट देयर आर 8 स्टेट्स इन इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, है ना। तो ये कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो स्टेट्स के नाम भी याद रख लेना। तो अगर हम ये बात करें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, है ना, तो ये जो है ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं और ये जो वर्टिकल वाले हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अब लैटिट्यूड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा चेंज ऑफ सीजन। तो चेंज ऑफ सीजन इज डिपेंडेंट ऑन दी लैटिट्यूड्स, क्योंकि सन किसके ऊपर डायरेक्टली फॉल कर रहा है, उसके थ्रू जो है वो लैटिट्यूड्स जो है चेंज ऑफ सीजन को बिलोंग करती है। और लॉन्गिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड इज दी एस्टिमेशन ऑफ टाइम। हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या नेशनल टाइम जो है, इंटरनेशनल टाइम जो है जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डन थ्रू दी लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो हमारी सबसे लंबी लॉन्गिट्यूड है वो इंटरनेशनल टाइम जो है वो बताती है। और अगर हम इंडिया में बात करें कि इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन से लॉन्गिट्यूड से डिफाइन होता है, तो वो भी याद रख लेना, 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। तो 82.30 लिखते हैं या 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये वो लाइन है जिसके थ्रू इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फाइन। तो अभी अपन वापस आते हैं कि इसमें मैंने आपको ये स्लाइड क्यों बताई है। तो फर्स्टली ये कि लैटिट्यूड जो है उनसे चेंज ऑफ सीजन होता है और लॉन्गिट्यूड जो है उससे हम टाइम डिफाइन करते हैं। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारा
लैटिट्यूड है दैट्स इक्वेटर दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है दैट इज साउथ टू द इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी अभी अपन ने इंडिया के लिए बात करी थी दैट इज टू नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो ये नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटर है. इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और सर्दर्न पॉइंट पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना. 26.5 डिग्री दोनों का ध्यान में रख लेना. वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, बट 26.5 डिग्री आप याद रख लीजिएगा. साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो इंडिया से तो टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. नाउ देयर आर टू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, द थ्री लॉन्गिट्यूड सॉरी द लैटिट्यूड्स दैट वी हैव. तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये आपको पता है ये वाली जो कंट्री है, तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राजील नाम की कंट्री है. तो एक क्वेश्चन ब्राजील के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, दैट विच इज द कंट्री थ्रू विच द इक्वेटर एंड अ ट्रॉपिक पास. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है और इक्वेटर पास करता है. आंसर क्या है, ब्राजील. अनदर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड इज, ये आपको पता होगा कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइंस जो है वो क्रॉस करती हैं, तीनों जो हमारे मेजर लैटिट्यूड्स हैं वो क्रॉस करते हैं. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है. तो ऑल दीज थ्री मेजर लैटिट्यूड्स जो हैं दे पास थ्रू अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट. तो ब्राजील एज अ कंट्री बात करिए हमने, इकलौती कंट्री है जिससे इक्वेटर और एक ट्रॉपिक पास करता है. कौन सा ट्रॉपिक पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड देन वी हैव द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट में से तीनों जो मेजर हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो क्रॉस करते हैं. ठीक है, फाइन. और जो सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड है हमारा, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. प्राइम मेरिडियन, है ना. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट सॉरी ईस्ट और वेस्ट जो है दोनों तरफ में टाइम कैलकुलेट होता है. ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है. ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट इज द लॉन्गिट्यूड थ्रू विच वी मेजर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. फाइन, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड रहे हैं. तो यहाँ पूछा है विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट. आई एम श्योर कि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज ज्यादा वक्त मत अपना जाया करना. आप लोग जनरल नॉलेज के 16 क्वेश्चंस पे इन एसईटी, प्लीज पे हीट टू द अदर सेक्शन. तो ये वाला तो जल्दी से आपका हो जाना चाहिए विद इन 5 minutes. You just browse to the questions and tick mark the answers and move on. ठीक है, तो which gas is the most abundant? नाइट्रोजन इज अ गैस दैट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इनमें से यूज करते हैं वो कौन सा है ना. तो जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो कौन सा है, बैरोमीटर. ठीक है, बैरोमीटर हम यूज करते हैं. फैथोमीटर जो है ये डेप्थ ऑफ द ओशन. ये जो है आपका दिस इज रिलेटेड टू विंड स्पीड. अच्छा, इसमें से एक और जो यहाँ पर नहीं है, सेस्मोग्राफ जो बोलते हैं, सेस्मोग्राफ. तो जो है ये अर्थक्वेक का जो रहता है उसको मेजर करने के लिए सेस्मोग्राफ रहता है ना. फैथोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर की तो जरूरत है नहीं आपको बताने के लिए. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बैरोमीटर यूज कर रहे हैं. विंड स्पीड करना हो तो एनीमोमीटर है. फैथोमीटर है फॉर द डेप्थ ऑफ ओशन. और अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होती है वो मेजर करने के लिए वी हैव दी सिस्मोग्राफ. ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर की ही अगर हम बात करें तो अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये लेयर्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. इसके ऊपर पे भी बेस क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं. तो बेस क्वेश्चंस जो हैं लेयर्स के ऊपर किस तरह के आए हैं वो मैं आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. तो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर. यहाँ सारी क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं. क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज, ये सारी चीजें कहाँ हो रही होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में. तो सबसे ज्यादा हलचल वाली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर. द नेक्स्ट वन, द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच लेयर इज द लेयर इन विच द एयरक्राफ्ट्स दे फ्लाई.
तो एयरक्राफ्ट दे फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन लेयर भी जो है, वर्ल्ड ओजोन डे आपको याद करना ही है, तो वर्ल्ड ओजोन डे, तो ओजोन लेयर जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो लिविंग बींग्स है उनकी प्रोटेक्शन होती है, दैट इज ऑल्सो देयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के लिए दो चीजें याद रखनी है, ओजोन लेयर भी यहाँ पर है और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए भी वी यूज स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मीजोस्फेयर। The coldest layer of the earth atmosphere is mesosphere. Thermosphere is the sphere in which all the space related activities take place. तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो है थोड़ा स्पेस रिलेटेड, नासा है या फिर इसरो है, उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और एग्जॉस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये नाम याद रख लेना इन द सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इनकी कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो इंडिविजुअल फीचर्स आपने याद रख लेना है। ठीक है, द फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, ऑल द क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज, क्लाउड फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस। स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको ओजोन लेयर बताया है और एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई करने का जोन जो है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। मीजोस्फेयर मैंने आपको बोला कि इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जितनी भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं दे टेक प्लेस इन थर्मोस्फेयर, एंड एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये भी ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है एंड आई थिंक आपको ये सब पता ही होगा कि भाई स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और बिगेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। ठीक है, और अगर कभी आपसे ये पूछ लें कि लार्जेस्ट कंट्री या बिगेस्ट कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आई एम श्योर वो भी आंसर आपको पता होगा, इट इज रशिया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछ लें तो इट इज चाइना। ठीक है, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, वो जो हमारे पास मेजर ओशंस हैं उसमें तो लार्जेस्ट वन इज पैसिफिक और जो स्मॉलेस्ट वन इज द आर्कटिक ओशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट इज द आर्कटिक, सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है। फाइन, तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं, तो आप प्लीज अपने ऊपर भरोसा रखिएगा कि अगर सिंपल क्वेश्चन मिल जाए सेक्शन के अंदर तो ऐसा ना हो कि यार ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन जब आते हैं तभी आंसर करने में थोड़ा सा इशू हो जाता है और हम कुछ गलत मार्क कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, सिट कामली। आई होप आप लोग मॉक्स अपेयर कर रहे हो, तो मॉक्स आर गोइंग टू गिव यू द काइंड ऑफ टेम्परामेंट दैट यू शुड कीप व्हाइल यू आर राइटिंग डाउन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। और मॉक की बात मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि आप कहाँ पर जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको हम मिनी मॉक्स जो है जीके के लिए आपके रिवीजन के लिए दे विल बी देयर, तो आप वहाँ से लेकर पीडीएफ और अपना रिवीजन और एक्सपैंड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ दिस इज रिलेटेड टू द प्लानिटरी सिस्टम, है ना, तो अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। तो यहाँ पर पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो आई एम श्योर कि आपको पता है कि मार्स जो है दैट इज कॉल्ड टू बी द रेड प्लैनेट। वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ कि ब्लू प्लैनेट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्थ, है ना। अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट है क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये पूछते कि ग्रीन प्लैनेट कौन सा है तो आप अर्थ नहीं मार्क कर सकते थे, अर्थ ब्लू प्लैनेट है। ग्रीन प्लैनेट कभी पूछ लें आपसे तो वो यूरेनस है। तो जो गैस है इसके एटमॉस्फेयर में दैट गिव्स द रेडिएशन ऑफ द कलर ग्रीन, तो इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं इसलिए हम इसको ग्रीन प्लैनेट कह रहे हैं। तो हमारे पास रेड प्लैनेट जो है वो मार्स है, ब्लू प्लैनेट जो है वो अर्थ है, जो ग्रीन प्लैनेट है वो यूरेनस है। अब प्लैनेट विद अ रेड स्पॉट भी है अपने पास तो ये डिफरेंट है ना, प्लैनेट विद अ रेड स्पॉट। ये जो रेड स्पॉट है एक तरह का स्टॉर्म है जो कि हमारे बिगेस्ट प्लैनेट दैट इज जुपिटर जिसके ऊपर वो है स्टॉर्म, तो उसकी वजह से जो है उसको प्लैनेट विद अ रेड स्पॉट कहा जाता है। तो ये हमारा बिगेस्ट प्लैनेट भी है ना। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो मर्क्यूरी है स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है। तो इस पर भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर कि ये हमने बहुत ही बचपन में पढ़ा था और ये रिकॉल हम कर पाएंगे इस पर्टिकुलर रिवीजन के बाद, और कई लोगों को तो ये आता भी होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में था द प्लैनेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। अब मून्स बोले या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स बोले, वन एंड द सेम थिंग। तो अगर अपन नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, तो अर्थ के पास तो एक ही है यार, बट यहाँ पर हम बात करें 274 मून्स की। तो जो 274 मून्स हैं वो लार्जेस्ट प्लैनेट के पास नहीं है, दे आर विद सैटर्न। तो सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट, सबसे ज्यादा मून्स जो है वो किसके पास है, सैटर्न के पास है। फाइन, जिसमें से एक आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, उसका नाम है टाइटन। तो सैटर्न का सबसे बड़ा मून जो है वो टाइटन है।
बट अगर प्लानिटरी सिस्टम में पूछें कि सबसे बड़ा जो मून है वो क्या है या सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो जुपिटर के पास है और उसका नाम है गैनामीड। ठीक है, तो गैनामीड जो है उसके पास गैनामीड इज द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट मून इन द प्लानिटरी सिस्टम। ठीक है, और सैटर्न का जो सबसे बिगेस्ट है दैट इज टाइटन। फाइन। और ये जो दो हमारे प्लैनेट्स है ना, वीनस और मर्क्यूरी, इनके पास तो मून है ही नहीं, है ना। दीज आर दी ओनली टू प्लैनेट्स जिनके पास मून नहीं है। ये जो वीनस है इसको हम अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हो गई ना, थोड़ा सा रुक रुक के सुन लेना प्लीज, पॉज कर करके और अपने पास लिख लेना। फाइन। तो ये सारी प्लैनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखेंगे अपन। अब यार साइंस रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। जब साइंस रिलेटेड पूछते हैं तो उसके अंदर बहुत ही सिंपल से, अगेन आप बोलोगे आप सिंपल सिंपल बोल रहे हो यार, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। तो यहाँ पर सनशाइन वाइटामिन पूछा है, तो दिस इज वन वाइटामिन। अगर आप टेस्ट कराएं तो वाइटामिन डी की कमी जो है वो बहुत सारे लोगों में निकल आती है। तो सनशाइन वाइटामिन क्या है? वाइटामिन डी। क्योंकि सनलाइट के थ्रू जो है जब वो हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है या हमारे ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन, है ना। तो विटामिन डी जो है D3 स्पेसिफिकली हम बोलते हैं। तो सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस मिनरल के हों या विटामिन के हों उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उस नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपके पास वो लिस्ट दे दी है, तो प्लीज गो थ्रू कर लेना। तो विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो स्कर्वी। विटामिन ए वाला मल्टीपल टाइम्स उन्होंने पूछा है, तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा डेफिशिएंसी वाले डिजीजेस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए लिस्ट है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आउट ऑफ द व्यू कि ये विटामिन डेफिशिएंसी वाले डिजीजेस है। विटामिन के ऊपर पे भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है पहले, तो प्लीज इसको ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट वाला स्लाइड जो है दिस इज द स्लाइड दैट रिलेट्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, है ना, मिनरल डेफिशिएंसी। तो ये आयोडीन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। फाइन। तो यहाँ पे भी आई एम आउट ऑफ द व्यू, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेमोराइज दीज एज वेल। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एसईटी इज द बुक्स एंड द ऑथर्स। तो बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स मैच द कॉलम के फॉर्म में या डायरेक्टली सिंगल लाइनर के तौर पे जो है उन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सी है यार, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वाचिंग द वीडियो मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि विंग्स ऑफ फायर जो है दैट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, है ना। तो ये जो APJ अब्दुल कलाम साहब है तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। बाय द वे यहाँ पर जो बाकी नाम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से नाम है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, आई होप आप में से कुछ लोग और रिकॉल कर पाए। मैंने कहा था कि उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो टुवर्ड्स फ्रीडम है। लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर रहे थे या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जब उनकी बात कर रहे थे तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है टुवर्ड्स फ्रीडम। नेल्सन मंडेला हु वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अपार्थाइड के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई करी एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ये जो नेल्सन मंडेला साहब हैं इनकी भी ऑटोबायोग्राफी है जिसको आपको याद रख लेना चाहिए। एंड इट ऑल्सो हैज द वर्ड फ्रीडम इन इट एंड इट इज टाइटल्ड एज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और महात्मा गांधी जी की तो सबको पता ही होनी चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, है ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। वैसे एक नहीं उनकी दो और है, मतलब 3 है इन टोटल, बट जो सबसे पॉपुलर है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं दैट इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अब यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो मैच द कॉलम में भी आता है, इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं, करेक्ट भी पूछ सकते हैं, फॉर्म चेंज हो सकता है, बट देन टॉपिक तो सेम ही है ना, बुक्स एंड ऑथर्स। तो यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशंस ये तो भाई एडम स्मिथ की है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है भाई चार्ल्स डार्विन ने ही लिखी थी। आर्ट ऑफ वॉर भी सुन त्जू की है ना, काफी पॉपुलर बुक है। तो ये भी आई होप आप में से कई लोग बुक्स पढ़ते हो, और जो बुक्स पढ़ते हो या फिर बुक्स के बारे में नॉलेज रखने में जिनका इंटरेस्ट हो वो लोग इसको इन क्वेश्चंस को इजीली हेल्प डील कर सकते हैं
और जो नहीं करते हैं भाई उनको याद करना पड़ेगा, है ना, एलिमिनेट करने के लिए भी याद ही करना है अपन को। और शॉर्ट एट हिस्ट्री सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है, तो दिस इज द आंसर हियर, क्योंकि अ शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है यार ये अभिनव बिंद्रा की है। पता है आपको कि अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव बिंद्रा जी एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि शूटिंग, राइफल शूटिंग के अंदर एक्सपर्टीज है इनकी, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो कि लिस्टेड है सुनहरे अक्षरों में, दैट ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स, the first individual sports person from India to win a gold medal at the Olympics, that is Abhinav Bindra। तो अ शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है वो किसकी है? अभिनव बिंद्रा जी की है। तो ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं कि इन्होंने कोई ऑटोबायोग्राफी ना लिखी हो, भाई इन्होंने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, दैट्स द टाइटल, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स। तो प्लेइंग इट माई वे, दैट्स द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। और ये जो शॉर्ट एट हिस्ट्री यहाँ पर आपको दी हुई है, दिस बिलोंग्स टू अभिनव बिंद्रा, द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी, मतलब एक बुक नहीं मल्टीपल बुक्स आपके लिए जो है वो कवर हो गई हैं, और इसीलिए कुछ और बुक्स जो हैं उसका आपको यहाँ पर लिस्ट दे दिया है, तो अगेन आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें से आप देखोगे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वाले पॉल एलन भी हैं, बिल गेट्स भी हैं जिनकी बुक यहाँ पर मेंशन्ड है। तो द आइडिया मैन, अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो द आइडिया मैन जो है दैट्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पॉल एलन। द हिटमैन रोहित शर्मा की हैरी पॉटर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आया है, या जेके रोलिंग जो है वो हैरी पॉटर सीरीज के लिए मानी जाती है। अनब्रेकेबल पे क्वेश्चन आया है। मैरी कॉम अनदर मेडलिस्ट विनर फॉर अस एट द ओलंपिक्स, तो अनब्रेकेबल जो है वो ऑटोबायोग्राफी है मैरी कॉम की। इसी की तरह दीपा करमाकर भी आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ओलंपिक में मेडल तो नहीं जीता, बट देन शी वाज द फर्स्ट फीमेल जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स एट द ओलंपिक्स, है ना, रियो ओलंपिक्स की बात है। तो स्मॉल वंडर इनकी बायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, आई होप डिफरेंस पता हो आपको। तो मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है और स्मॉल वंडर जो है वो बायोग्राफी है दीपा कर्माकर की। इंडिया आफ्टर गांधी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बुक है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सिमिलरली द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिया अमर्त्य सेन। तो आपको याद है मैंने बोला है कि अवार्ड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है वो करने वाले हैं कवर। तो ये भी कुछ बुक्स के नाम हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए ताकि एलिमिनेशन में कभी आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो अब क्योंकि हम मेडल या अभिनव बिंद्रा का नाम आ ही गया था, तो मैंने सोचा कि ओलंपिक्स भी कवर करते हैं आज ही के सेशन के अंदर, और उसको अपन लोग वाइंड अप करेंगे विद दिस। तो अगर हम इंडिया की बात करें एट दी ओलंपिक्स, तो वैसे तो आपको पता होगा कि समर ओलंपिक्स भी होते हैं, विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। तो ओलंपिक्स तो एवरी 4 ईयर्स होते हैं, बट एवरी 2 ईयर विंटर और समर के बीच में ऑल्टरनेट करते रहते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास ये जो टोटल 41 मेडल्स हैं ओलंपिक्स में, दीज आर ऑल एट दी समर ओलंपिक्स, और ये इंडिविजुअल मेडल्स भी हैं और टीम मेडल्स भी हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया को पहला मेडल कौन सा मिला था एट द ओलंपिक्स, नाउ दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो नॉर्मन पिचर्ड करके हैं, 1900 के अंदर पेरिस में हुए थे ये ओलंपिक्स। उनको जो है पहला सिल्वर मेडल, इनफैक्ट 2 मेडल्स जीते थे इन्होंने, दोनों जो है रेस में जीते थे, ट्रैक इवेंट्स में जीते थे, तो उन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। तो ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू गेट, या फर्स्ट मेडल टू इंडिया केम थ्रू नॉर्मन पिचर्ड फ्रॉम द ओलंपिक्स। फर्स्ट गोल्ड, अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने अभिनव बिंद्रा जी का नाम बताया था, बट अभिनव बिंद्रा वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल, है ना। बट इंडिया एज अ कंट्री का जो पहला गोल्ड है, अगेन दिस केम बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, एंड दैट वाज इन अ टीम इवेंट हॉकी, है ना। तो हॉकी के अंदर 1928 के अंदर जो है हमारे पास पहला गोल्ड आया था। इनफैक्ट इन टोटल एज अ हॉकी टीम, या हॉकी जो है हमारे पास 8 गोल्ड मेडल्स हैं यार, 8 गोल्ड मेडल्स। ये जो 10 है ना उसमें से 8 तो हमारे हॉकी के ही हैं, बचे जो 2 हैं वो अभिनव बिंद्रा जी, और आपको एक नाम तो पता ही होगा, चोपड़ा जी। क्या है उनका पूरा नाम, जरा कमेंट में लिखकर बताना। तो उनको जो है जावलिन थ्रो के अंदर ही वन अ गोल्ड मेडल फॉर अस। तो अभिनव बिंद्रा जो इतने सालों से अकेले इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे इंडिविजुअल, तो उनको कंपनी देने के लिए
नीरज चोपड़ा जी, अभी तक आपने लिख दिया होगा कमेंट में, नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एक और। तो ऐसा करके 10 में से 8 हमारे टीम के हैं और 2 इंडिविजुअल मेडल्स हैं। तो पहला मेडल इंडिया का सिल्वर मेडल था जो कि नॉमन पिचोट के थ्रू आया। इंडिया का पहला गोल्ड जो है वो टीम मेडल दैट केम फ्रॉम हॉकी। इंडिया का पहला ब्रॉन्ज मेडल जो है वो रेसलिंग में आया था। हमारे रेसलर्स काफी जो है पॉपुलर रहे हैं या सक्सेसफुल रहे हैं ओलंपिक्स में। तो केडी जाधव जो है, KD Jadhav, he was the first bronze medalist. He won the first bronze medal for India और ये इन्होंने रेसलिंग में लिया था। इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट की हम बात कर चुके हैं, अभिनव बिंद्रा। इनके साथ एक और जो है वो हमारे नीरज चोपड़ा जी ऐड हो गए। फर्स्ट फीमेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीमेल जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी है। वेट लिफ्टिंग के अंदर शी वन दी मेडल। जैसा ना तो वेट लिफ्टर जिन्होंने हमारे लिए मेडल जीता है ओलंपिक्स में, बट अभी हम इनको याद रखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी जो है, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। मल्टीपल मेडल्स की हम बात करें तो हमारे पास एक फीमेल भी है, पीवी सिंधु, उन्होंने मल्टीपल जीते हैं। बट अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल मेडल्स एट द ओलंपिक्स, अगेन रेसलर्स। मैंने बोला आपको कि हमारे रेसलर्स जो हैं वो काफी पॉपुलर या सक्सेसफुल रहे हैं ओलंपिक्स में। तो सुशील कुमार जो है, ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया टू विन मल्टीपल मेडल्स, है ना। उनको सिल्वर मेडल भी मिला है और ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दीज फर्स्ट related to the Olympics, the total number of medals that we have won, the total number of goals that we have, और गोल्ड मेडल में भी 8 जो है वो तो हॉकी को ही बिलोंग करते हैं। बचे हुए 2 जो है वो हमारे इंडिविजुअल लोगों के हैं और इंडिविजुअल्स के नाम आपको पता है। अब ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है यार वेन्यूज के ऊपर। तो ये कुछ सालों के पिछले और आगे आने वाले के, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट आपके लिए जो है वो लिख दी है। तो प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी मास्टर कॉलम के तौर पे सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जो समर ओलंपिक्स हुए हैं लास्ट 2024 के, दैट वाज द पेरिस ओलंपिक्स। उसमें हम लोगों ने इन टोटल 6 मेडल जीते थे। उन 6 मेडलिस्ट के नाम यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं। कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट से वो रिलेट करते हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स पर्सन का स्पोर्ट आपको दिया जाए और फिर आप उसको मैच द कॉलम करो। तो ये आप याद रख लेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जो है हमारे लिए जीता था। तो हम लोगों ने जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे ना 2012 में, उसकी बराबरी करी थी 6 मेडल्स। तब भी जब हमने 6 मेडल जीते थे, यहाँ पे भी हमने 6 मेडल जीते। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज और सिल्वर जो भी मेडलिस्ट विनर्स हैं उन सबके नाम आपके पास यहाँ पर है। अगेन ये भी हमारे लिए मल्टीपल बन गए ना, इन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है और सिल्वर भी जीत लिया। खैर, तो ये नाम जो है वो आप ध्यान में रख लेंगे। तो विद दिस आई विल वाइंड अप टुडेज सेशन, टेलिंग यू दिस थिंग वंस मोर दैट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर वी विल बी गिविंग यू द क्वेश्चंस या फिर मिनी मॉक बोल दो उनको जीके के, फॉर योर रिविजन, एडिंग ऑन टू योर रिविजन फॉर द SET एग्जामिनेशन 2026. तो go and be a part of that, be a part of our the Instagram page as well as दी टेलीग्राम। तो टेलीग्राम के ऊपर डिस्कशन करने हो या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज ज्वाइन अस एंड देयर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द PDFs फॉर enhancing or enriching your revision for general awareness for SET 2026. So until I meet you next time, it's ciao from my side. Bye bye.